topic is integrated rate law expression for first order kinetics. For first order kinetics or first order reactions. तो इसको डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले रिएक्शन कंसिडर करेंगे एंड दैट रिएक्शन इज ए गिविंग यू द प्रोडक्ट्स. नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 मान लीजिए ए जो है रिएक्टेंट जो हैं उनके ए मोल्स पर लीटर प्रेजेंट हैं स्टार्टिंग में और प्रोडक्ट्स कितने होंगे, दे विल बी ओनली 0. सो दिस इज एट टाइम इक्वल टू 0 और अप टू टाइम t मान लीजिए इसमें से x मोल्स पर लीटर्स डिसोसिएट हो चुके हैं और प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, तो ये कितने रह जाएंगे एट टाइम t, दिस विल बी एट टाइम t रिएक्टेंट्स जो हैं जो रह जाएंगे दे विल बी a माइनस एक्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू x. So rate of the reaction, rate of this reaction is equal to dx by dt, which is equal to k into concentration of the reactant, that is A minus x, and this is the concentration of the reactant at time t. So this is the rate of the reaction dx by dt, which is equal to k A minus x. Now we will separate the variables. We will separate the variables और ये आ जाएगा dx एक साइड और x वाली टर्म्स a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा यहाँ पे और k dt ऊपर चला जाएगा. Now we will integrate this equation. Now by integrating on both the sides, if we integrate this equation on both the sides, we will get the integration of this 1 by e minus x, this will be equal to minus log of a minus x and this will be equal to k is a constant और dt का integration will be t, so kt plus constant of integration I. अब I को calculate करने के लिए I will consider this equation at time equal to 0. अगर t को 0 लें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए एट t इक्वल टू 0 दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, उस टाइम में 0 होगा जब अभी रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं, तो x तो अभी कुछ डिसोसिएशन तो हुई नहीं है, दैट मीन्स x विल बी 0. सो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, दैट मीन्स i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ a. अब इस i की वैल्यू को हम यहां पे डाल देंगे एंड वी विल ऑब्टेन बाय यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2. 2 को मैंने इंसर्ट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, i की वैल्यू फर्स्ट में डाल दी, तो आई विल गेट दिस इक्वेशन एज माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स is equal to k into t and I की वैल्यू is minus log of a. तो इस इक्वेशन से अल्टीमेटली मैंने k की वैल्यू निकालनी है, k की या t की. सो kt is equal to log of a, अगर उस साइड लेके जाएं और kt की वैल्यू निकाल लें, माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स.
So now this will be equal to Kt is equal to log of A minus log of B. क्या होता है? log of A minus log of B is equal to log of A upon B. So this will be equal to Kt is equal to log of A upon A minus x. That means K is equal to 1 upon T log of A upon A minus x. Now I'll change this log, natural log, into the log to the base 10. और वो कैसे करूँगा मैं? इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करूँगा and it will be equal to K is equal to 2.303 upon T log of A upon A minus x. This equation you have to remember. जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल आता है for the reactions following first order kinetics, उनके लिए आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है. K is the rate constant, T टाइम है जिस टाइम तक अभी x मोल्स पर लीटर जो रिएक्टेंट्स हैं वो अभी डिकम्पोज हुए हैं, एंड A is the initial concentration of the reactants. Let it be third equation. This equation can also be written as K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon A, where A naught is the initial concentration of the reactants and A is the concentration of the reactants at time T. Now after this we will study certain characteristics of the reactions following first order. एक characteristic तो ये है कि जो first order kinetics follow करती हैं reactions, उनको ये equation या ये वाली equation follow करनी है. They should follow the reactions following first order kinetics. They should follow this equation. मतलब अगर आप first order kinetics वाले reactions के लिए different times पे different concentrations लेके, ये वाली A minus x वाली concentration different होंगी different times पे, और किसी एक्सपेरिमेंट के लिए जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई रिएक्शन हो, उसके लिए आप डिफरेंट टाइम्स पे ये वाली कंसंट्रेशंस लें और डिफरेंट टाइम्स डालें, तो K की वैल्यूज उस रिएक्शन के लिए अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही हैं तो दैट मींस दैट रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर K की वैल्यू डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे कांस्टेंट नहीं आ रही है, दैट मींस दैट रिएक्शन इज नॉट फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि all the reactions following first order kinetics should follow this equation or this equation. Second characteristic इसका है in order to study the second characteristic, आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो. इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? देखिए, t को ऊपर ले आइए आप. So this can be modified as Kt divided by 2.303 is equal to log of A naught divided by A. Now this can be written as Kt divided by 2.303 is equal to log of A naught minus log of A. माइनस लॉग ऑफ ए इस साइड लेके आए अगर, तो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log of A naught. अब this equation can be compared with straight line जो इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c. That means अगर आप ग्राफ बनाएं log of A versus किसमें? t में. log of A versus t में जो ग्राफ आएगा that will be a straight line graph having a negative slope, और उसका अगर slope पता लगा ले हम that will be equal to minus k upon 2.303, और उस slope से k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. सो देखिए ग्राफ अगर बनाएंगे that will be a straight line graph किस किस के बीच में? log of A
वर्सेस टी के बीच में, और ये कुछ ऐसे करके नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू minus k upon 2.303, and from the value of this slope we can calculate the value of k. Rate constant can be calculated from this graph. Next is half life period in case of the reactions following first order kinetics. सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड है क्या? इट इज दैट टाइम ड्यूरिंग विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स दे गेट डिकम्पोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. ये वो टाइम है जिसमें कि 50% रिएक्टेंट्स या हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स डिकम्पोज हो चुके होते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. और इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हम निकालेंगे इसको उसी इक्वेशन से जो लास्ट में हमने इक्वेशन निकाली थी, दैट k इज इक्वल टू 2.303 upon t log of a upon a minus x, और t is equal to 2.303 upon k log of a upon a minus x. अब t को मैं अगर t हाफ लूँ, हाफ लाइफ पीरियड लूँ, t if t is t half, then it will be 2.303 upon k log of a is the initial concentration, a minus x is the concentration of the reactant at time t. अब टाइम क्या ले रहा हूं मैं, t half. so a minus x कितना होना चाहिए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ. तो a minus x क्या होना चाहिए, अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे a, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा a by 2. That means a minus x should be equal to a by 2. So log of a divided by a by 2, that means ऊपर चला गया 2 ये, a gets cancelled, this gets cancelled out. We are left only with log of 2, and log of 2 क्या होता है 0.3010. So t half will be equal to 2.303 upon k. Log of 2 is 0.3010, and if we multiply this 2.303 into 0.3010, this will be equal to t half is equal to 0.693 upon k, and this you have to remember and this is only in the case of the reactions following first order kinetics. कि t half उन cases में क्या होगा 0.693 upon k. अब यहाँ पे देखिए कि t half does not depend upon the initial concentration of the reactants. Concentration of the reactants involved है ही नहीं t half में, किस पे डिपेंड कर रहा है, बस k पे, रेट कांस्टेंट पे. So concentration of the reactant has nothing to do with the half life period in case of first order kinetics. So this formula you have to remember, t half is equal to 0.693 upon k. Next topic जो हमने कवर अप करना है इसमें वो है methods to determine rate law, rate constant and order of the reaction. So next topic is methods to determine rate law, rate constant and order of the reaction. इसमें सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड. और ग्राफिकल मेथड उन रिएक्शंस के लिए यूज होता है विच इन्वॉल्व ओनली सिंगल रिएक्टेंट्स.
जिनमें ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उनके लिए ग्राफिकल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड. दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर दोज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली ए सिंगल रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल ऐसे करके कोई रिएक्शन है Na गिविंग यू द प्रोडक्ट्स, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व. अब देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें आपने रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ्स प्लॉट करने होते हैं. अगर तो रेट ऑफ द रिएक्शन एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस, उनका जो ग्राफ आ रहा है रेट और कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है रिएक्शन. क्या कहा मैंने, रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है अकेला रेज टू पावर 1 ओनली, उनके बीच में ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K इंटू A ओनली. अगर रेट वर्सेस A स्क्वेयर कंसंट्रेशन स्क्वेयर के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है वो वाला रिएक्शन. तो रेट लॉ फॉर दैट रिएक्शन विल बी R इज इक्वल टू K A स्क्वेयर. नाउ बाय जनरलाइजिंग दिस, ग्राफिकल मेथड को जनरलाइज किया जाए कि अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट वर्सेस A रेज टू पावर n के बीच में जो ग्राफ होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, and that means rate law expression will be equal to R is equal to K A raised to power n. This is graphical method to determine rate law expression order of the reaction, and this method is used only for those reactions in which only single type of reactants are involved. क्या किया इसमें देखिए, अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है. अगर रेट वर्सेस A स्क्वेयर कंसंट्रेशन स्क्वेयर के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है. अगर रेट वर्सेस A रेज्ड पर n के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो nth ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है वो वाला पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. सेकंड मेथड जो है दैट इज इनिशियल रेट मेथड. इनिशियल रेट मेथड ऐसे रिएक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है जिसमें काफी ज्यादा रिएक्टेंट्स हों. जैसे मान लीजिए N1A plus N2B plus N3C giving you the products. इस रिएक्शन के लिए if you have to find out the rate law expression, तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको. इस पर्टिकुलर मेथड में, इनिशियल रेट मेथड में सबसे पहला काम ये किया जाता है कि नोन कंसंट्रेशंस A, B, C, मान लीजिए 3 रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी नोन कंसंट्रेशंस लेके सबसे पहला काम किया जाता है कि इनिशियल रेट मेजर किया जाता है. नोन कंसंट्रेशंस ऑफ A, B, C लेके इसका रेट मेजर करेंगे, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन मेजर करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे कि मान लीजिए एक को फिक्स, आपने क्या करना है कि एक को चेंज करना है और 2 को फिक्स कर देना है. मान लीजिए आपने क्या किया, A और B की जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी वो वैसे ही रहने दी आपने, और C को चेंज किया, बस C की कंसंट्रेशन को चेंज किया. तो इनिशियल रेट मेथड में क्या करना है कि एक की कंसंट्रेशन, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ही चेंज करना है, बाकी सबको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, जैसा स्टार्टिंग में लिया था वैसे ही रहने देना है. मान लीजिए C को चेंज कर रहे हैं और A और B को फिक्स रख रहे हैं, और C को चेंज करते हुए आपने रेट फॉलो करना है रिएक्शन का कि क्या फर्क पड़ रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन पे. अगर C को मान लो डबल कर रहे हैं और रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स C के रिस्पेक्टिवली कौन सा ऑर्डर होना चाहिए. एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि अगर C को डबल करने पे, C की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, तो दैट मीन्स C के रिस्पेक्टिवली ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर. C को डबल कर दीजिए, 2C कर दीजिए,
और ऊपर स्क्वायर है, अगर सेकेंड ऑर्डर है तो रेट क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने पता लगाना है। मान लीजिए सी को ट्रिपल करने पे या फिर सी को डबल करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन सिंपली डबल ही हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू सी ऑर्डर क्या होगा। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि सी को डबल करने पे अगर रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो रहा है तो दैट मीन्स सी के रिस्पेक्टिवली ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। सी को डबल कर रहा हूं यहां पे, अगर सी को डबल कर दूं मैं 2c कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं दो को आपने फिक्स करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड आपने रेट निकाल लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये सारा सारों के लिए रिपीट करना है। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने बी और सी को फिक्स कर दिया और ए के रिस्पेक्टिवली आपने ऑर्डर निकालना है। फिर आपने उसके बाद ए और सी को फिक्स कर दिया और बी के रिस्पेक्टिवली रेट निकालना है। हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिवली आपने रेट मेजर करना है, हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिवली आपने ऑर्डर मेजर करना है और ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। फिर ओवरऑल ऑर्डर विल बी सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, जो ईच रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिवली आया है उसका जो सम टोटल होगा दैट विल बी ओवरऑल ऑर्डर। देखिए इसमें क्या किया हमने, इनिशियल रेट मेथड में मान लीजिए मैंने 3 रिएक्टेंट्स कंसिडर कर रहा हूं। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है कि सारे के सारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी एक नोन कंसंट्रेशन लेके इनिशियल रेट मेजर कर लेना होता है रिएक्शन का। उसके बाद एक किसी भी रिएक्टेंट को उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करना होता है, बाकी सारों की जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन फिक्स कर देनी होती है। जैसे पहले क्या किया कि ए और बी को फिक्स कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, और विद रिस्पेक्ट टू सी ऑर्डर निकाल लेना है। कैसे निकालना है, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि अगर सी को डबल करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है तो दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू सी ऑर्डर क्या है, 2। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ए और सी को मान लीजिए फिक्स कर दिया और बी को चेंज किया, बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, और आप ये देखते हैं कि बी को डबल करने पे, बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डबल हो रहा है। इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू पावर 1 ओनली, क्योंकि बी को डबल करने पे रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो रहा है, दैट मीन्स बी के रिस्पेक्टिवली इट इज फर्स्ट ऑर्डर। फिर आपने क्या करना है कि अब रह गया विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपने बी और सी को फिक्स कर देना है और विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर मेजर करना है। और अब ऐसा बी और सी को फिक्स करने पे अगर आप ऐसा वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो रिएक्शन में कि रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंसंट्रेशन ऑफ ए को चेंज करने से, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ए रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ए की कंसंट्रेशन चेंज करने पे, दैट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए शुड बी 0। तो ऐसे करके आपने हर एक के रिस्पेक्टिवली, ए के रिस्पेक्टिवली, बी के रिस्पेक्टिवली, सी के रिस्पेक्टिवली ऑर्डर मेजर कर लिया। ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2 + 1 3, और विद रिस्पेक्ट टू सी इट इज सेकंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज 0 ऑर्डर। So this is the initial rate method to find out the rate law expression. Third method is half-life period method. Half-life period method. देखिए यहां से शुरू करना है कि टी हाफ फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन जो है, दिस इज द रिलेशन टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर n-1। दिस इज फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, जो टी हाफ का रिलेशन है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर हम दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट से शुरू करें, तो दो कंसंट्रेशंस ले रहा हूं मैं, रिएक्टेंट्स की दो इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहा हूं, एक को 1 कहूंगा, एक को 2 कहूंगा। तो टी हाफ 1 जो है डिवाइडेड बाय टी हाफ 2, अगर रेशियो ले लिया जाए दैट विल बी इक्वल टू
A naught 1 raised to power n minus 1 or A naught 2 raised to power n minus 1. That is, this will be equal to T half 1 divided by T half 2 A naught 2 divided by A naught 1 raised to power n minus 1. Now taking logs on both the sides, so this will be n minus 1 into log of now we have to calculate n order. तो ऑर्डर निकालने के लिए इट विल बी, इसको नीचे ले जाए यहाँ पे, n minus 1 रह जाएगा. व्हाट विल बी n minus 1? n minus 1 will be equal to log of T half 1 minus log of T half 2 divided by log of A naught 2 minus log of A naught 1. So this is n minus 1, n will be, इसको 1 को वहाँ ले जाएं, 1 plus this thing, that will be the order of the reaction, and this is the method, half-life period method, by which we can calculate the order of a reaction. Order निकल गया तो rate law expression निकल गई एक तरह से. So next method जो है, last method to calculate or to determine the rate law, rate constant and order, that is Ostwald's isolation method. ऑस्टवर्ड्स आइसोलेशन मेथड में भी ऐसे रिएक्शंस का ऑर्डर निकाला जा सकता है जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों. जैसे A N1A plus N2B plus N3C गिविंग यू प्रोडक्ट्स. इसमें और इनिशियल रेट मेथड में ये डिफरेंस है कि इनिशियल रेट में तो हमने क्या किया था कि पहले इनिशियल रेट निकाल लिया था और एक की कंसंट्रेशन, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया था, बाकियों को फिक्स रखा था. इसमें क्या करेंगे कि किसी एक की कंसंट्रेशन को कम रखेंगे और दूसरे जो बाकी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे कि उनमें चेंज अगर आएगा भी थोड़ा बहुत तो दैट विल नॉट बी रिलेटेड टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. जैसे C की कंसंट्रेशन को बहुत स्मॉल रखेंगे और जो दूसरे हैं उनको फिक्स करने के बजाय क्या किया ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड में कि इनको आइसोलेट कर दिया. आइसोलेट कैसे कर दिया कि इनकी कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा दी, सो दैट उनकी कंसंट्रेशंस में A और B की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा दी, सो दैट उनकी कंसंट्रेशन में जब रिएक्शन हो रहा है तो कोई चेंज आएगा भी तो दैट विल बी नेग्लिजिबल चेंज. चेंज किस में आएगा? C में आएगा और विद रिस्पेक्ट टू C ऑर्डर निकाल लेंगे. उसके बाद A और C की कंसंट्रेशंस को बहुत ज़्यादा करवा देंगे, बहुत इंक्रीज करवा देंगे, सो दैट इनकी कंसंट्रेशंस में अगर थोड़ा बहुत चेंज आए तो कोई फर्क ना पड़े. उसके बाद B और C में इंक्रीज इतना ज़्यादा करवा देंगे कि नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू A. सो ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड में एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा दिया जाता है, सो दैट उनमें रिएक्शन होते हुए अगर थोड़ा बहुत चेंज आता भी है उनकी कंसंट्रेशन में, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है,
तो उनकी कंसंट्रेशन में देयर विल बी हार्डली एनी चेंज एंड दैट विल नॉट इफेक्ट द ऑर्डर. सो देखिए फॉर एग्जांपल ए और बी को बहुत ज़्यादा करवा दिया कंसंट्रेशन को, फिर ऑर्डर निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू सी. फिर उसके बाद ए और सी को इंक्रीज करवा दिया, ऑर्डर निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू बी. उसके बाद बी और सी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा दिया, ऑर्डर निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू ए. तो ऐसे करके हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिवली ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया जाता है. एंड दिस इज ऑस्टवर्ड्स आइसोलेशन मेथड टू कैलकुलेट द rate law, rate constant and order of the reaction. Next topic which we have to cover in chemical kinetics is collision theory. कोलिजन थ्योरी सबसे पहले ये कहती है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के लिए कोलिजन्स होना रिएक्टेंट्स के बीच में बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले कोलिजन्स होनी चाहिए तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. और कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक पैरामीटर है, हमने सबसे पहला स्टडी करना है इसमें. कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय Z. कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. और गैसियस मिक्सचर्स के लिए, गैसियस रिएक्शंस के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज क्वाइट हाई, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 25 to 10 raised to power 28 कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. इतनी ज़्यादा कोलिजन्स अगर हों और सारी की सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें तब तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. दैट मीन जितनी भी कोलिजन्स हो रही हैं दे आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स. कुछ ही कोलिजन्स इफेक्टिव होती हैं. इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि वो कोलिजन जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें, दे आर इफेक्टिव कोलिजन्स. तो सारी की सारी कोलिजन जितनी भी होती हैं दे आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स, क्योंकि अगर सारी इफेक्टिव होती तो रिएक्शन मिक्सचर में, गैसियस रिएक्शन मिक्सचर में इतनी ज़्यादा कोलिजन्स हो रही हैं देखिए पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, तब तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, पर ऐसा होता नहीं है. तो इफेक्टिव होने के लिए कोलिजन्स को दो बैरियर्स हैं जो सरपास करने पड़ते हैं. एक है एनर्जी बैरियर, और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर. जो कोलिजन्स इफेक्टिव होंगी वही वाली कोलिजन्स इफेक्टिव हो सकती हैं जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो. सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड for the collisions to be effective, and that minimum amount of energy is known as threshold energy. So threshold energy क्या है? This is the minimum amount of energy which should be possessed by the reactant molecules so that they can be converted into the products. जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही नहीं वो प्रोडक्ट्स बना ही नहीं सकती. दैट मीन्स उसमें इफेक्टिव कोलिजन्स हो ही नहीं सकती. फिर अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर है तो 100% चांस है कि प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, कोलिजन्स इफेक्टिव होंगी, क्योंकि दूसरा बैरियर विच इज ओरिएंटेशन बैरियर वो भी सरपास होना चाहिए. ओरिएंटेशन बैरियर का मीनिंग क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर का मीनिंग ये है कि जो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है ए बी, दूसरा मॉलिक्यूल है दिस इज ऑल्सो ए बी. ऐसे को कोलाइड करें अगर तो दे विल फॉर्म ए and BB. Now this is
प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर ऐसे कोलाइड करें, अगर कोलिजन ऐसे होता, ऐसे को कोलिजन होता तो क्या बन जाना था, जहां से शुरू हुए थे वही चीज बन जानी थी, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब ये प्रॉपर कोलिजन है, ओरिएंटेशन है, ए एंड बी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स बन गए। इसमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं बने, दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। सो दो बैरियर्स सरपास होने चाहिए सबसे पहले अगर इफेक्टिव कोलिजन्स होनी है और प्रोडक्ट्स बनने हैं, एंड दो बैरियर्स वो क्या हैं, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। अगर ये दोनों सरपास हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स इन दोनों को क्रॉस कर जाते हैं, दैट मीन्स इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। Next is rate of the reaction. The rate of the reaction जो है that is equal to, that is directly proportional to Z. Z is the collision frequency. Collision frequency अभी मैंने बताया आपको कि collision frequency is number of collisions per second per unit volume. जितनी ज़्यादा होंगी ये collisions उतना ज़्यादा होगा rate of the chemical reaction. Now collision frequency पे अकेले डिपेंड नहीं करता कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, it also depends upon the fraction of the effective collisions, fraction of the molecules undergoing effective collisions. So R जो है that is equal to F into Z. R is equal to F into Z. F क्या है, fraction of the molecules undergoing effective collisions, and Z is the collision frequency. Now R is equal to F जो होता है that is equal to E raised to power minus E upon RT into Z. Fraction of the molecules undergoing effective collisions, that means ऐसे molecules जिनकी ऐसी collision जिनकी energy जो है that is greater than E, greater than the threshold energy, are equal to E raised to power minus E upon RT. Now R is equal to P into Z into E raised to power E upon RT. P क्या है, orientation factor को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पे, orientation पे भी डिपेंड करता है because rate of the reaction also depends upon the orientation of the reacting molecules. So rate of the reaction is equal to P into Z E raised to power minus E upon RT. अब इसके बाद हमने देखना है कि what is the effect of temperature on the rate of the reaction. Effect of temperature on the rate of reaction. और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन हम एक पैरामीटर्स की हेल्प से स्टडी करेंगे विच इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट. फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर. और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट is equal to rate constant at T plus 10 degree Celsius divided by rate constant at T degree Celsius. So ratio है temperature coefficient, किसका रेशियो है, रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस. और ये जो टेम्परेचर्स लिए जाते हैं दे आर मोस्टली टेकन एज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस. सो इट विल बी K T plus 10 divided by K T, that is K T plus 10. If T is 25 degree Celsius means T will be 298 Kelvin and T plus 10 will be 308 divided by
K at 298. And for most of the reactions, this temperature coefficient, इसकी जो value है, this lies between 2 to 3. That means 10 डिग्री सेल्सियस जब राइज करवा रहे हैं टेम्परेचर का, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डबल से भी ज्यादा हो रहा है. फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस डबल से भी ज्यादा हो रहा है, 2 to 3 टाइम्स हो रहा है. इसके बाद साइंटिस्ट ने दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स, किस फैक्टर्स की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन जो है दैट इज बिकमिंग डबल. तो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो है दैट कैन बी सबसे पहला फैक्टर कौन सा हो सकता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी. एंड सेकंड फैक्टर कौन सा हो सकता है? एफ, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स. क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है दो ही मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली टू मेन फैक्टर्स, एक तो एफ है और दूसरा जेड है. जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स. तो अगर ये सोचें कि टेम्परेचर राइज करवाने पे Z इंक्रीज हो रहा है इसलिए रेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा सोच के देखें सबसे पहले कि Z इंक्रीज होगा. और ये बिल्कुल सही बात है कि Z इंक्रीज होगा, बिकॉज टेम्परेचर जब इंक्रीज कराओगे रिएक्शन मिक्सचर का तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल ऑल्सो इंक्रीज. कोलिजन्स इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन शुड ऑल्सो इंक्रीज. लेकिन हुआ क्या कि साइंटिस्ट दे फाउंड आउट कि Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T. दैट मीन्स अगर दो टेम्परेचर्स पे Z का रेशियो लिया जाए और किन टेम्परेचर्स पे Z at 308 डिवाइडेड बाय Z at 298, दैट विल बी इक्वल टू 308 divided by 298 and it came out to be 1.016. तो अगर Z के इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन डबल होता तो ये वैल्यू जो आनी थी Z 308 डिवाइडेड बाय Z 298, इसकी वैल्यू 2 से 3 टाइम्स आनी चाहिए थी. लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.016. दैट मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितना टाइम्स इंक्रीज आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने से, टेम्परेचर राइज करवाने से? जस्ट 1.016 का राइज आ रहा है, इतने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन इज बिकमिंग 2 to 3 टाइम्स. दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से Z इंक्रीज हो रहा है और Z इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स हो रहा है. दिस कैन नॉट बी द मेन फैक्टर ऑन विच दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है डबल हो रहा है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज. तो मेन फैक्टर क्या होगा? F होगा, जो बताएगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन डबल क्यों हो रहा है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर. और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स जो ग्राफ है. मैक्सवेल ने ग्राफ दिया है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. और मैक्सवेल ने ये ग्राफ दिया है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे y एक्सिस पे देयर आर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और इस साइड को एनर्जी है. लेट इट बी थ्रेशोल्ड एनर्जी. यहाँ पे दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. दैट मीन्स इस केस में जिस टेम्परेचर अभी मैंने ग्राफ बनाया है, लेट दैट बी T टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स दे आर दीज मॉलिक्यूल्स जो मैंने शेड किए हैं. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करवा दूं मैं इसमें, तो मैक्सवेल जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है जो मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज की, that will shift towards right hand side, become somewhat flatter also. और कुछ ऐसे करके ग्राफ आएगा for T2 if T2 is greater than T.
सेकेंड टेम्परेचर जो मैं ले रहा हूं दैट इज हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर पे जो ग्राफ है दैट विल बिकम समवट फ्लैटर, इट विल ऑल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. और इससे देखिए क्लियर है कि फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अब इस केस में which are undergoing effective collisions, they have become almost double with the rise in temperature. अगर rise ये मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस का है तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है they have become almost double. सो मेन रीज़न कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर, उसका मेन रीज़न है कि फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स possessing energy more than the threshold energy या फिर fraction of the molecules undergoing effective collisions that becomes almost double. and Z का कोई बीच में आपने Z को नहीं लेना है. अगर मल्टीपल में क्वेश्चन आता है तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ही मेन रीजन देना है. Z will not be the main reason. So this was rate effect of temperature on the rate of the reaction. Next is एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. एक्टिवेशन एनर्जी समझाने से पहले मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है. जैसे ये ग्राफ है, यहां पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन and towards this y-axis there is energy. Now this should be exothermic reaction or endothermic reaction. This graph should be for exothermic reaction or endothermic reaction. अब ये products हैं, these are reactants. Reactants और products की energy compare कीजिए. किसकी energy ज़्यादा है? Products की energy ज़्यादा है. That means reactants ने कुछ energy absorb की तभी products बने, और एनर्जी एब्जॉर्ब की है रिएक्टेंट्स ने. दैट मीन्स कौन सा रिएक्शन होना चाहिए जिसके लिए ग्राफ है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन. लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, एंड लेट इट बी सी, let it be D. जो A है बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक जितना एनर्जी है, जहां से रिएक्टेंट्स को पहले सरपास करना पड़ता है जिस बैरियर से, इतना जो गैप है पूरा नीचे से ऊपर तक, A जो मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट इज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी. B जो है दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. और रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी थी उससे ज़्यादा जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स को देनी पड़ती है सो दैट इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएं, सो दैट प्रोडक्ट्स बन जाएं, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज सी. सो दिस इज मिनिमम एक्सेस एनर्जी. मिनिमम एक्सेस एनर्जी या मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी that has to be provided to the reactants so that they can be converted into the products. That is the activation energy. So threshold energy, अगर आपने threshold energy दी हो और साथ में आपको ये average energy of the reactants is given, तो आप उसमें से activation energy निकाल सकते हैं. Yes, that can be calculated. Threshold energy is A. A में से क्या subtract करें कि C आ जाए? A में से B सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और C आ जाएगा. दैट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल गिव यू द एक्टिवेशन एनर्जी. बट दिस वाज द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. और ये D क्या है यहाँ पे? D इज द एंथैल्पी चेंज और द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड. सो एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता होना चाहिए. एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एक्सेस एनर्जी दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट्स सो दैट इफेक्टिव कोलिजन्स may take place, so that products can be formed.
Now next topic is effect of temperature on rate constant K or Arrhenius equation. Effect of temperature on the rate constant K or Arrhenius equation. Now Arrhenius equation is K is equal to A e raised to power minus EA upon RT. K is the rate constant, A is the pre-exponential factor, EA is the activation energy, R is the gas constant, T is the temperature absolute scale में Kelvins में. Now taking logs on both the sides, you will obtain log of K is equal to log of A minus EA upon RT. Log of K is equal to log of A minus EA upon RT. Now इसमें दो different temperatures में मैं different values लूँगा. T1 पे मान लीजिए K is K1, T2 पे K is K2. तो temperature पहले T1 पे at temperature T1 this will be log of K1 is equal to log of A minus EA upon RT1 or at temperature T2 it will be log of K2 is equal to log of A minus EA upon RT2. This is first equation, this is second equation. Now second में से first को आप subtract कर दीजिए, second में से first को subtract कीजिए, क्या आएगा? log of K2 minus log of K1. log of K2 minus K1 क्या बन जाएगा? log of K2 minus log of K1 क्या बन जाएगा? log of K2 upon K1. And what about आगे वाला करें आप? log of A this cancels out. We are left with minus EA upon RT2. Minus of this, that will be plus EA upon RT1. Now this will be log of K2 upon K1 is equal to, common क्या लें? EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. So this will be log of K2 upon K1 is equal to EA upon R. This will be T1 T2, T2 minus T1. Now we will convert this log, natural log, into log to the base 10. This will be equal to 2.30 से multiply होगा 2.303 into log of K2 upon K1. तो साथ ही में मैं क्या कर रहा हूँ कि 2.303 को नीचे लेके जाऊँगा. तो this will come out to be log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. This is very important equation. इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको AEEE में. देखिए क्या है कि K2 है जो that is rate constant at the temperature T2 and जो K1 है that is the rate constant at the temperature T1. ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स में माइंड में ये रखना है कि T1 और T2 जो हैं दोनों ये टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स. अगर डिग्री सेल्सियस में करोगे आंसर्स विल बी रॉन्ग. तो कई बार ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं कि अगर टेम्परेचर 300 है और उसके बाद 310 कर दिया जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल. तो उसका मतलब ये है कि 300 पे अगर K1 इज K तो 310 पे K2 क्या लोगे आप? 2K. Because rate of the reaction is becoming double, that means rate constant will also become double. Now Arrhenius equation के बेस पे हमने ग्राफ प्लॉट करके देखना है. इसके बाद इसी को आगे मॉडिफाई करें इस इक्वेशन को कि दिस वाज log of K is equal to log of A minus EA upon RT. Now इसके बाद इस इक्वेशन को देखिए log of K is equal to log of A minus EA upon RT. इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और मॉडिफाई देखिए दिस विल बी मॉडिफाइड एज
2.303 log of k is equal to 2.303 log of a minus EA upon RT। तो जस्ट मैंने दूसरे लॉग में कन्वर्ट किया, इसको नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया लॉग टू द बेस 10 में, और 2.303 से डिवाइड कर दूं मैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ k इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। नाउ log of k is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log of A. Now this equation can be compared with straight line equation जो होती है y is equal to mx plus c। y is equal to mx plus c से इसका comparison किया जा सकता है। That means अगर आप log of k और 1 upon t के बीच में ग्राफ बनाओ, that will be a straight line graph। किसके बीच में देखिए, log of k वर्सेस 1 upon t के बीच में जो ग्राफ है, that will be a straight line graph। ऐसे को ग्राफ आएगा लेकिन with negative slope आएगा, और slope जो होगा that will be equal to minus EA upon 2.303 R। That means इस लाइन का अगर स्लोप आप निकाल लें और R की वैल्यू आपको पता है, और EA कैन बी कैलकुलेटेड अगर आपको स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नोन। सो दिस इज ऑल्सो ए मेथड टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। दैट ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन t ग्राफ बनाइए आप, एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसका जो स्लोप आएगा अगर वो आपको पता हो, स्लोप से you can calculate the activation energy, slope into this 2.303 into R, that will give the activation energy of that particular reaction। एक बार फिर से देखिए, because this is very important Arrhenius equation, effect of temperature on the rate constant k। Arrhenius equation is k is equal to AE raised to power minus EA upon RT। Taking logs on both the sides, log of k is equal to log of A minus EA upon RT। Temperature T1 पे log of K1 is equal to log of A minus EA upon RT1। Temperature T2 पे it will be log of K2 is equal to log of A minus EA upon RT2। Second equation में से first को subtract करवाया, और it came out to be log of K2 upon K1 is equal to minus EA upon RT2 plus EA upon RT1। यहाँ से ये इक्वेशन जो आई है इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। Next is how to find out the activation energy of a particular reaction। तो उसके लिए I started from this equation, and this equation log of K is equal to log of A minus EA upon RT। इसको मैंने नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया इनटू लॉग टू द बेस 10। कैसे किया, 2.303 से मल्टीप्लाई किया, और दिस केम आउट टू बी 2.303 log of k is equal to 2.303 log of A minus EA upon RT। Now dividing throughout by 2.303, it will be equal to log of k is equal to log of A minus EA upon 2.303 RT। Now log of k is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log of A। This equation can be compared with y is equal to mx plus c। That means अगर आप log of k और 1 upon t के बीच में ग्राफ बनाते हो, that will be a straight line graph with negative slope, और slope अगर पता चल जाए इस लाइन का, slope पता चल जाए, तो that means activation energy EA can be calculated।